No, Saad. Okay. Yes, now visible, sir. Okay. So mark your attendance at bit.ly /git हो गया 01. So let's get started. So today's session is on getting started with GitHub. So as you know, we have started a course on GitHub. So I just want to inform you about this session. So we are going to have 4 sessions on consecutive Saturdays. So today is our very first session, and our next session will be on next Saturday at 3 p.m. So today's session is about on getting started with GitHub. So for this session, we have made collaboration with 2 societies, IEEE CUNATE Student Branch and IEEE UCP Student Branch. So thank you both of the societies for collaborating with us in this session. So now moving on to our speaker for this session. So Ali Ayub, if I'm going to give a complete introduction, so it's going to take very long time. So a brief introduction about himself. So he's the very first GitHub and GitKraken ambassador of Pakistan. So it's the brief introduction about himself. So now I'm going to forward this to Ali Ayub. So Ali, I request you to start the session. Assalamu alaikum everyone. Thank you, Uh, let, Saad, for handing me over. मुझे बताइएगा कि if you all can hear me properly. yes, you are audible. चलो, I'm just going to share my screen. Just confirm it कि if you all can just see my screen. Yes, it's Is it visible. visible? Yes. चलें, सही है. That's good. सही. अच्छा, let's just start off with me. Okay, who am I? What am I doing? Or just to give you some idea, I did not really prepare the slides. I have the slides with me. It's still they're open down there, but I would still prefer not giving the introduction and everything from slides. The reason behind that is क्योंकि मतलब we are just talking about introduction and everything, so I want it to be a hands-on kind of a session. तो मैं साथ साथ I'll be sharing my screen. You can just see everything and आपके जो जो questions होंगे keep noting them down and आखिर पे भी in the QA session you can just ask me and I would love to just answer all of them. दूसरी चीज़ ये कि नाम मेरा साथ ने बता दिया, it's Ali Ayub Khan. I graduated from NAST in computer science last year 2019 में. उसके बाद I started job with Jazz. I'm currently working with Jazz as well as a automation specialist. So उस चीज़ my job with Jazz is a little different. It's more of a management kind of a stuff, but I'll definitely talk about some pipeline automation and this Git and GitHub stuff today. And उसके अलावा there's one more thing that this Git and GitHub is something which is really evolving nowadays, and version controlling is something जो कि सबको चाहिए और everyone needs it. So this is not just only from perspective of learning and doing it. This is something you can give your services as well. I'm doing this as well, by the way. On Fiverr, I'm working as a trainer as well. This way, I'm working for GitHub, GitLab, pipeline automations, and सारा कुछ इस तरह की चीजें. So I'll definitely show you around for that as well. चलें जी, let's just start with Git itself. अब normally I don't know exactly कि आप लोगों को कितना idea है, लेकिन I'll just start from very basic and then I'll keep sharing everything, so everyone is just aligned or everyone is on the same page. अब let's just start with Git. अब Git और GitHub को लोग थोड़ा confuse ये करते हैं कि GitHub is so Git itself is a software which is basically a version controlling software. Version controlling से मेरा मतलब क्या है कि जी, if I talk about version controlling, so Git is just a software which keep tracks of all the work that is happening into a folder or into a repository which is being tracked by Git. If you've initiated a Git repository, a Git
is within that repository. आप उस folder पे आप उस file में कुछ भी काम करोगे, even you change a line, you change the name, you change anything, Git will know कि जी क्या चीज़ कब चेंज हुई थी, किस डेट पे चेंज हुई थी, कौन से यूज़र ने चेंज की थी. So this is basically a version controlling in very basic and in very simple words. So this Git itself is a version controlling software. और जो GitHub है, GitHub is actually a website जहाँ पे आप versionally controlled जो सॉफ्टवेयर हैं वैसे या वैसे डॉक्यूमेंट्स हैं या टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशंस है या एनीथिंग एल्स, यू मेंटेन इट देयर. अब सिर्फ GitHub itself is not a single provider. GitHub is from Microsoft. आपके पास GitLab भी है. उसके बाद now you have Bitbucket as well. They are down. वो मुझे नहीं पता कैसे down है, लेकिन ओवरऑल GitLab है, GitHub है, Bitbucket है, AWS Code Commit है. और ये सारे जो प्रोवाइडर्स हैं, दे आर ऑल इन ऑल अ सेम थिंग, दैट दे आर अ सर्विस जो सपोर्ट करते हैं गिट के वर्जनली कंट्रोल सॉफ्टवेयर या डॉक्यूमेंटेशन या कुछ भी चीज़ को टू होस्ट इट अप देयर. अब लेट्स स्टार्ट विद गिट अप बिट. आई वुड सजेस्ट आप में से जिन लोगों ने गिट इससे पहले इंस्टॉल नहीं किया हुआ ऑन द सिस्टम्स, इधर इट्स मैक, इधर इट्स विंडोज़, उबंटू और एनीथिंग, और लिनक्स कोई भी वर्जन है, just go to this website git/sem और just search git download. आपको इस पेज पे आ जाएगा. You can just download this specific client from git. It will be called git bash. और जैसे आप लोग डाउनलोड करेंगे it will look something like this. मैं विंडोज़ से हूँ अभी लॉग्ड इन, तो विंडोज़ का जो व्यू है वो इस तरह से होगा. मैकबुक पे ऑब्वियसली इट विल बी डिफरेंट एंड सेम गोज़ फॉर अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स. सो आई वुड सजेस्ट जब तक मैं थोड़ी सी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं किया हुआ दे कैन जस्ट डाउनलोड इट फ्रॉम दिस साइट, सो यू कैन प्रैक्टिस इट अलॉन्ग विद मी, या देख सकें साथ साथ. This is just like a terminal for Git specific commands. You can do the same stuff in terminal as well. Like, and I would start with this one ताकि it's pretty clear and किसी को भी confusion ना हो. अब Git के क्या concept हैं? I'll go with the basic concepts और मैं साथ साथ सारी चीज़ें करता जाऊँगा. Let's just create a directory with the name of test repo. अच्छा, अब if I just have to show you ना कि जी मैंने एक डायरेक्टरी क्रिएट की, you can just create a folder or something. If I just go to document, sorry, सर मेक डायरेक्टरी से mkdir. हाँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है. You can just create a folder. मैंने उसमें कमांड लाइन पे तो I just did it. तो मैं ये बताना ये चाह रहा था कि आप यहाँ पे कोई फोल्डर बनाएं. So this is just a folder. अभी इसमें कुछ भी नहीं है. There is nothing in it. ठीक है, everything is just empty. अब सिनेरियो क्या है कि I've changed my directory to this specific folder जो मैंने बनाया है टेस्ट रेपो के नाम पे, लेकिन currently it's empty और इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा. अब मेरा सबसे if I want Git to start tracking this folder, कि ये जो मैंने folder बनाया है टेस्ट रेपो के नाम पे, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं initialize करूँगी और मैं Git को बताऊँगा कि भाई I want to associate Git या version controlling with this specific folder. उसके लिए कमांड होती है git init, बेसिकली git initialization है. ठीक है, as soon as I'll run this command, जो रिपोजिटरी है वो इनिशिएट हो जाएगी या वर्जन कंट्रोलिंग ऑन दिस सॉफ्टवेयर और सॉरी दिस फोल्डर विल इनिशिएटेड. अब इफ यू सी अभी भी ये फोल्डर है. को डाउनलोड जो करना है उसको इंस्टॉल जो कर रहे होते हैं उसके लिए उसकी जो डिफॉल्ट सेटिंग है वो उसी को ही हम फॉलो करें. आप सारी डिफॉल्ट सेटिंग तो वैसे ही फॉलो करें, इट्स गुड टू गो, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे आपके पास प्रॉम्प्ट्स आएंगे. सो सारी की सारी डिफॉल्ट सेटअप को फॉलो करें एंड इट विल बी गुड टू गो. और दूसरी चीज़ ये कि
मैं आई गेस आई कैन जस्ट वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, मैं तब तक कुछ और चीज़ देख लेता हूँ, समझा देता हूँ, सो दैट सबका डाउनलोड हो जाए एंड दे कैन जस्ट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग अलॉन्ग विद मी। अच्छा, टॉकिंग अबाउट गेट ओवरऑल, जब तक लोग डाउनलोड कर रहे हैं, इफ यू जस्ट गो टू द वेबसाइट, आप लोग देख सकते हैं कि अपेरेंटली गेट इज जस्ट being used with all the big players. Why? कि जी गूगल हो गया, एंड्रॉइड हो गया, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट का तो अब इनका अपना गेटहब भी है, लिंक्डइन, एवरीथिंग। वाई? बिकॉज आप अगर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हो, इवन आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अलावा भी देखो, तो वर्जन कंट्रोलिंग इज समथिंग विच इज़ रियली हेल्पफुल एंड दिस इज समथिंग विच कीप वर्क और द प्रोजेक्ट वेरी ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, आपको हर चीज़ का पता होता है कि जी कौन से यूज़र ने या आपके कौन से डेवलपर ने, आपके कौन से बंदे ने क्या काम किया, कब किया। ठीक है, यू कैन एक्चुअली ट्रैक द स्टफ, यू कैन बैक ट्रैक। अगर आपने कोई आप यू वर्किंग ऑन अ फीचर, वो फीचर ब्रेक हो गया, जस्ट वांट टू गो बैक टू द प्रीवियस स्टेट। ठीक है, दिस इज समथिंग वेरी इजी एंड दिस इज वेरी इजी टू जस्ट सी के जी कौन सी, आप कौन से स्टेट पे थे, आपने पहले इससे 5 स्टेट जो पहले था वहाँ पे जाना है और उसको चेंज करना है या इस तरह की चीज़, यू कैन प्रीटी मच डू इट। अब एज आई वाज जस्ट एक्सप्लेनिंग कि जी मैंने इनिशियलाइज कर दी थी गेट इनिट कमांड के साथ, तो वो रिपोजिटरी इनिशियलाइज हो गई। इफ आई नाउ जस्ट टाइप गेट स्टेटस, आप देख रहे होंगे कि जब इनिशियलाइज मैंने नहीं की हुई थी तो इससे पहले यहाँ पे कुछ नहीं शो हो रहा था, मतलब देयर वाज नो मास्टर रिटन, जो अभी आ रहा है। जैसे ही मैंने ये किया तो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप इनिशियलाइज करते हो रिपोजिटरी या वर्जन कंट्रोलिंग इनिशियलाइज करते हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट देयर आर फ्यू थिंग्स कि जिसकी ब्रांच होती है वो एक बन जाती है विच इज़ नेम ऑफ मास्टर। ठीक है, और उसके हिसाब से वो लिंक हो जाती है ताकि इट नोज। इफ आई जस्ट टाइप गेट स्टेटस तो इट विल टेल मी कि जी आई एम ऑन दिस ब्रांच विच इज़ बाय डिफ़ॉल्ट। आप कुछ भी नहीं लिखोगे तो इनिशियलाइज करोगे तो ये सिर्फ ब्रांच बनेगी, इसके अलावा कोई और नहीं होगी। and उसके बाद there are nothing that has been changed, there is nothing to just add to the repository or there's nothing to track. Now let's just do a thing, मैं यहाँ पे जाके एक text document initialize करता हूँ test के नाम पे। let's just type anything, test file git। अब मैंने किया अपने फोल्डर में जाके चेंज है, ठीक है, बिकॉज दिस इटसेल्फ आपका गेट से इससे कोई ताल्लुक उस तरह से नहीं है, मतलब ये सारा कुछ लिंक्ड है, लेकिन यू कैन वर्क एज नॉर्मली एज यू कैन नॉर्मल, जिस तरह आप लोग वैसे काम करते हैं। सो मैंने फोल्डर में गया, फोल्डर में मैंने फाइल बनाई, अगर फाइल नहीं बनानी थी तो मैं कहीं से कुछ कॉपी कर रहा था, मैंने सारी फाइल्स कॉपी की, यहाँ पेस्ट कर दी। तो जैसे ही मैंने ये की, आप जब हमने ये गेट स्टेटस किया तो देयर वाज नथिंग टू कमिट और देयर वाज नथिंग चेंज। इफ आई नाउ जस्ट टाइप गेट स्टेटस, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल गेट स्टेटस एक कमांड ऐसी है जो कि आपको किसी भी पॉइंट पे अगर आपने कुछ स्टेटस जानना है या चेक करना है कि जी व्हाट्स हैपनिंग इन योर रिपोजिटरी, तो दिस इज द कमांड, दिस इज व्हाट यू शुड रन। तो अब मैंने गेट स्टेटस रन किया, इट्स टेलिंग मी कि जी आई एम ऑन दिस ब्रांच, कमिट कुछ नहीं है, लेकिन देयर आर फ्यू अनट्रैक्ड फाइल्स। अब ये अनट्रैक्ड और ट्रैक्ड वाले में क्या प्रोसीजर है? कैमरा मैन ने भी करना अपनी तरफ। इफ एवरीवन कैन जस्ट म्यूट देयर माइक्स, आई गेस किसी का कोई माइक अनम्यूट है। साद Done. You can start. सही हो गया। Excuse me, I had a question. श्योर। या आपने जो कमेंट के बाद गेट स्टेटस के बाद जो कमांड लिखी वो क्या थी? गेट स्टेटस के बाद मैंने कोई कमांड नहीं लिखी अभी तक, इट्स जस्ट गेट स्टेटस। ओके, एंड द अदर क्वेश्चन वाज कि हम लोग जब गेट इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ गेट यूआई भी आती है जो गेट यूजर इंटरफेस है, तो वो किस लिए होती है? आप किसकी बात कर रहे हैं? गेट यूआई की बात कर रही हैं? जी, जब गेट इंस्टॉल करते हैं तो वो उसके साथ ही आती है। हाँ, अब देखें, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, दिस इज द गेट बैश इटसेल्फ। अब इसके दो तरीके हैं, इधर यू कैन यूज दिस और इधर यू कैन यूज योर कमांड लाइन। ठीक है, और तीसरी चीज़ ये है कि इफ़ यू आर नॉट रियली इनटू कमांड लाइन और उस तरह से यूआई बेस्ड स्टफ, लेकिन वो गेट की तरफ से प्रोवाइड नहीं होता, वो गेट हब की तरफ से प्रोवाइड होता है। इफ़ यू जस्ट सर्च गेट हब डेस्कटॉप, तो उनकी एक ऐप है फॉर एग्जांपल फॉर नॉन डेवलपर्स या फिर जो लोग कमांड लाइन से या कमांड से थोड़ा सा नॉट रियली इजी विद देम, तो वो
UI बेस पे जाके या वो वाली ऐप यूज करके they can do all this stuff from clicks and different button clicks. Okay, so it does the same thing जो हम command line पे कर रहे हैं और जो हम Git UI पे कर रहे हैं. हाँ जी, it does the same thing, but UI is something which is way more easier. You don't really have to remember the commands. And if you are a non-developer या फिर आपका technical background नहीं है, अब you are a manager और उस तरह की चीज़, so you can just use that application to just click and play. Okay. Thank you. Okay. ये कमांड्स कहाँ से हम ये देख सकते हैं कौन कौन से कमांड्स वगैरह है? आप सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि जस्ट गो टू गूगल, टाइप गेट कमांड्स, ठीक है, आपके पास बहुत सारी गाइड्स आ जाएंगी, ठीक है। ये तो ओवरऑल किसी और की हैं, इवन गेट की अपनी भी हैं। लेट मी जस्ट ओपन दिस अप। गेट के अगर जो डॉक्स में जाएं, सो दिस इज ऑल ऑफ द कंटेंट दैट यू कैन ऑलवेज यूज। इनकी अपनी वेबसाइट पे डॉक्स वाले सेक्शन पे जाएं, उसके बाद सेटअप एंड कन्फिग में ये वाली जो बातें मैं कर रहा हूँ ये सारी आ जाएंगी। उसके बाद क्रिएटिंग प्रोजेक्ट्स में आपको इनइट मैंने बुलाया, क्लोन का बताऊंगा आगे, और अभी एवरीथिंग ये सब कुछ यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस, गेट द कमांड्स एंड स्टार्ट वर्किंग। अब इसमें हर चीज़ बहुत डिटेल से डॉक्यूमेंटेशन से एक्सप्लेन्ड है, सो यू कैन फॉलो दिस स्पेसिफिक लिंक git-scm.com/docs। अब अच्छा, फर्स्ट एक और चीज़ मैं थोड़ा सा एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूं कि जिन लोगों ने बिल्कुल इंस्टॉल किया होगा गिट, सो दे नीड टू टेल दिस स्पेसिफिक गिट बैश दैट यू नो दिस इज द यूज़र दैट यू वांट टू यूज़, ठीक है। अगर मैं आपको कमांड बताऊं तो बेसिकली इट्स अ कन्फिगरेशन, वन टाइम कन्फिगरेशन, जो कि आप अगर सबसे पहली बार स्टार्ट करते हो काम करना, तो यू हैव टू सेट दिस अप। मेरे केस में ऑब्वियसली इट वाज सेट अप, तो इट डजंट रियली से समथिंग। लेकिन अगर मैं एक बार कमांड लिख रहा हूँ, जस्ट नोट दिस डाउन। इफ यू कैन सी, मैंने कमांड लिखी git config --- global user.name and then my username. I added this username from GitHub. अगर आप GitHub पे नहीं भी जाते, आप रिमोट सर्वर्स पे नहीं भी जाते, आप सिर्फ लोकली भी काम कर रहे हो, यू कैन जस्ट पुट इन एनी यूजर नेम, एनी ईमेल। इसी तरह से अगर आपने जब ईमेल ऐड करनी होगी तो इट विल बी लाइक git config --- global user.email स्पेस डबल कोट्स में आपका ईमेल। इफ यू जस्ट एंटर दिस आउट, और I have to type the email. I'm just entering my email जो कि इसके साथ associate हुई हुई है पहले से, because I don't really want to change it. अब इसका जो difference है वो कहाँ पे आया? If I just type this command git config --- list, if you can just see it here, ये कन्फिगरेशन फाइल में इसकी चीज़ सेटअप होगी कि जी अच्छा, दिस इज़ द यूज़र दैट विल बी यूजिंग गिट एंड दिस इज़ द ईमेल फॉर दैट। सो आप जब भी कोई काम या कोई भी एक चीज़ चेंजेस ट्रैक करोगे या फिर उसमें पुश करोगे या पुल करोगे, सो दिस विल बी द मेन ऑथेंटिकेशन ऑफ योर स्पेसिफिक यूज़र। अगर आप कोई काम भी करोगे तो पीपल विल बी एबल टू सी दिस यूज़र नेम एंड दिस ईमेल कि जी इस बंदे ने या इस यूज़र ने विद दिस ईमेल ये वाला काम किया है। So we were at this specific stage of जब मैंने फाइल ऐड की, when I ran git status, तो it was saying untracked files. अब git क्या है? git में basically 3 stages होती हैं. The first one is हमने फोल्डर में चीज़ ऐड कर दी है, but we have not told git that we want to register this one. अब ऐड होगी, गिट ने डिटेक्ट कर ली कि अच्छा देयर वाज समथिंग दैट वाज बीन एडेड और वो अनट्रैक्ड है, गिट को पता नहीं है और कि वो ट्रैक नहीं कर रहा उस चीज़ को। उसके बाद वी नीड टू डू इज वी नीड टू ट्रैक दोज फाइल्स, वो उसका दूसरा स्टेज है। द फर्स्ट वन इज अनट्रैक्ड, आपने ट्रैक कर दी तो वो मिड स्टेज में चला गया, बेसिकली स्टेजिंग स्टेज में चला गया। नाउ द गिट विल बी ट्रैकिंग दैट स्पेसिफिक फाइल और ट्रैकिंग दो स्पेसिफिक फाइल्स। और तीसरा स्टेज ये है कि यू वांट टू जस्ट confirm कि जी I have made the changes, I just want to commit it. This is the third stage. If I just show you,
अब ये untracked हैं, Git doesn't know, Git knows कि जी something has been added or something has been changed, लेकिन it's saying कि जी it's not tracked. Git doesn't know कि you want to track it further or not. So in order to track it, this is the command. I'm just making it simple right now. If you just type git space add space dot, it means all the files within this folders which I have added right now, I want to track them. If you want to track any specific file, you can just type the name of that file and ignore the others. But I will go with this now, git space add space dot. If I just enter this out, you see there's nothing, no message shown or anything like it seems nothing happened. But if I just type git status, it says it was in red. Now it says changes to be committed. Why? Because it is the third stage. The first one was it was untracked. As soon as I tracked it, I told Git that I want to track all the files. It turned green that there was a new file added with this name, and now you would want this to be committed. So Git is telling us that I should just commit these files, or I should just take these changes to the third stage. अब ये जो है ना, ये बेसिकली दिस इज द बेसिक फ्लो ऑफ गेट. मैंने किया कि मैंने इनिशियलाइज की रिपोजिटरी, उसके बाद कुछ फाइल्स ऐड की. फाइल्स ऐड करने के बाद आई टोल्ड गेट दैट आई वांट टू ऐड दोज, आई वांट टू ट्रैक दोज, एंड आफ्टर दिस व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट कमिट इट. अब कमिट में क्या होता है, आई नो मैं कमांड्स ऐड कर रहा हूँ तो पीपल वुड बी लाइक कि जी अच्छा कहाँ से आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, कैसे आ रही हैं. इन द बिगिनिंग इट विल बी लाइक दिस. इट वाज द सेम विद मी. आपको कमांड याद नहीं रहती. दिस इज द रीजन दैट आई टोल्ड यू दैट आप डॉक्यूमेंटेशन जाएं, आप जितनी बार कमांड देखना चाहते हैं यू कैन जस्ट डू इट. सो इट सेज गेट कमिट -m मीन्स कि आई वांट टू एसोसिएट अ मैसेज. डबल कोट्स में आई कैन जस्ट एसोसिएट एनी स्पेसिफिक मैसेज कि जी आई हैव एडेड अ टेस्ट फाइल, टेस्ट रेपो. Up, you can see that I have committed it. I've committed the changes that I have tracked to the third stage. Now, if I just type git status, it will say everything is just good to go, and there's nothing to commit. The working tree, and everything is just clean. Why? Because I added it. I added a file. I tracked it, and then I committed it. Now if I want to see that what are the commits that have been happened, या मैंने कौन से commits किए हैं specific repository में, तो I just have to write git space log. So if you can see these details जो मैंने अभी highlight किए आपके सामने, this was the commit that happened on this specific branch. Author कौन था? This was the author. ये उसकी email थी. Saturday को October 24 को इस टाइम पे उसने ये चीज़ की, और दिस वाज द मैसेज एसोसिएटेड विद इट. सो गिट ट्रैक्स एवरीथिंग इस तरह से. इसके और बहुत सारे चीज़ें तरीके होते हैं. इफ़ आई जस्ट वांट टू सी इट इन अ सिंपल वे, ठीक है, इट विल जस्ट शो मी दिस स्पेसिफिक स्टफ, लेकिन आई वुड सजेस्ट यू टू राइट गिट लॉग. इट विल गिव यू द कंप्लीट इंफॉर्मेशन. और ये जो आपको कोड नज़र आ रहा है, this is a hash basically. This is a hash code. What it means is that your every commit is linked with a specific number. Because I explained that आप किसी टाइम भी काम कर रहे हो और आप एक specific stage से दूसरे stage पे वापस revert करना चाहते हो. So this is the stuff that comes in handy at that time. For example, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, ठीक है, और मैंने उस stage से पिछले वाले stage पे वापस आना है, ठीक है, तो आई नो दिस नंबर, ठीक है, आई जस्ट हैव टू जस्ट रिवर्ट इट बैक यूजिंग दिस स्पेसिफिक SHA. आई ऑब्वियसली एज यू विल हैव दीज लेक्चर्स आगे भी, तो यू विल गेट दीज डिटेल्स काफ़ी डिटेल में. आई एम जस्ट गोइंग विद द बेसिक स्टफ. तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि दिस इज हाउ इट्स यूजफुल एंड हाउ इट इज़ रियली यूज्ड. अब हमने किया था कि मैंने रिपोजिटरी बनाई, इनिशियलाइज की, उसके बाद I've added a file, I've tracked it, I've committed it, and I've उसके बाद देखा कि कौन से commits हुए थे. Now all of this work is on my local setup. Excuse me. If you see, can you maximize the window?
This one? Yeah. And can you please increase the size of fonts because it's not visible actually. Yeah. Like, if possible. Thank you. Is it fine now? I guess it's too big, but still. Okay, so ये वाला सारा जो scenario I explained, it was on a local setup. अब ये repository मेरे local PC पे पड़ी है, ठीक है, with the name of test repo, but it's not anywhere hosted on remote server, which is basically GitHub. So what we can do is, let's just create a repository, an empty repository, and link it with the repository जो हमने locally बनाई है. अब I'll explain two things इसमें. पहला ये था कि हमारे पास एक local थी. I'll just initialize the repository. Repo. ये मैंने एक repository बनाई. I've made it. You can definitely make it public, private if you want to make it visible to all of the people on GitHub. You can just make it public. Anyone can just visit your profile and see the repository. And if I make it private, only I can see it, or only the people I give access to this repository can just see it. उसके बाद, if I want to initialize a README file, automatically just stick it up. Gitignore file, I'll get back to you कि ये Gitignore क्या होता है. If I want to add a license to the repository, I can do this. Basically, this is the third-party app जो कि मेरे account में show हो रही है because I've linked it up. This is a code review कि ये there are few apps जो आपके code को automatically review करती हैं. They pick up the bugs. They say कि इस code की quality अच्छी नहीं है, इस तरह की चीजें. But currently, I'm just not doing anything. I'm just initializing an empty repository. Now, if you see, repository has been made on my GitHub account with this name, but there's nothing in it. So what I'll do is I'll just copy the link of repository. You can just either copy it from, yeah. You've made it on private, not public, right? Yeah. Okay. I deliberately did it. Why? Because test repo मेरे उससे अभी बनी हुई थी, तो I wanted to show you here. Okay. Even, but it's not necessary कि मैंने एक बार private बना ली तो मैं उसको public नहीं कर सकता. If I just go to settings, I can pretty much make it public again from here, or even make it private if it's public. Mute है बोलो. नहीं है. उसके बाद the next step would be कि आप यहाँ से इस repository का link copy करो, either from this or the main URL. This is the repository link. अब मैं why I'm copying the link? Because I want to link this local repository with the online repository जो कि empty है, और I just want to push it from local PC to the remote server, which is basically a GitHub repository. अब now what I'll do is, अब if I just see, so there is nothing linked. अब इस repository को या इस Git repository को कुछ पता नहीं है कि जी remote कौन सा है या क्यों है, ठीक है. So first I need to link both the repositories. अब दोनों repositories link कैसे होंगी? Basically I'll add something and I'll tell Git कि जी this is the remote link that I want to link with. उसके लिए basically we'll be using this specific command, git remote add origin. So this origin, what I've written origin, you can just type any name here. It doesn't really matter. This is the name of the remote. Just to tell Git that, okay, this is the name. And I've did git remote add origin. I'll just paste the link here. This one, yeah. Basically, Ali, link is disabled for outsiders. So you can share with me. I can then give them all after the session. हाँ, मैं public कर देता हूँ. That's totally fine. अगर वो लोगों को यही देखनी है repository तो it's fine. I would suggest see the other repositories. I'll come to the other repositories. उसमें काफी काम की चीजें हैं. So it will eventually help you, or you can even
play with those repositories, you know, अपने उस पे. Like, still I'm just making it public, so anyone can just see it. I had to make it public. Start like. Okay, it's public. अब आप लोगों को भी ये repository मेरे user पे नजर आ जाएगी. अच्छा, so I was just linking the both repositories जो online थी और जो local थी. So what it is, git remote add origin the link. If I just enter this out, now I need to check कि जी set हुई है या नहीं हुई. So basically this is a command to list your remotes कि आपके local इस repository के साथ कौन-कौन से remotes connected हैं. और the good part is कि it's not necessary कि मैं सिर्फ एक ही remote link कर सकता हूँ. So it is possible कि मेरे पास या आपने जो ये लिंक ऐड किया वो किस तरह से किया? लाइक यू कैन नॉट पेस्ट इन गेट बैश. You just try to right click and then paste or either shift plus insert. Okay. Thank you. So if you no problem. If you can just see कि मैंने origins ऐड किया था, जो remote ऐड किया था, अब इसमें दो हैं, एक है fetch, एक है push. अब ये fetch और push क्यों है? Basically git automatically adds two of the remotes. सेम चीज़ है ये. एक आपके यहाँ से पुश करने के लिए लोकल से रिमोट पे, दूसरा अगर आपने कुछ चीज़ एक्सट्रैक्ट करनी है फ्रॉम योर रिमोट टू लोकल. I'll do it in this as well, वो आपको दिखाने के लिए कि what's happening है या क्या हो रहा है उस पे. So now if you just see कि इसमें रिमोट ऐड हो गए हैं. अब what I want to do is I want to push all the content या all the stuff from my local repository to the remote repository. अगर मैं अभी जाके देखूँ अपने repository पे तो because it's empty, there is nothing there, and if I just git push is the command जो हमने की थी origin that I want to push it to this specific remote. जैसे मैं बोल रहा था कि ज़रूरी नहीं है कि आप एक रिमोट ऐड करो. दिस इज पॉसिबल कि मेरे पास एक लोकल रिपोजिटरी जिस पर मैं काम कर रहा हूँ और वो मैंने होस्ट की हुई है 2-3 जगह पे. मैंने GitLab में भी रखी हुई है, मैंने GitHub पे भी रखी हुई है, मैंने Bitbucket में भी रखी हुई है. एंड आई वांट टू जस्ट कीप अपडेटिंग लाइक सिमल्टेनियसली और एक ही टाइम पे. सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू इट इन Git कि आप मल्टीपल रिमोट्स रख लो एक सेम लोकल रिपोजिटरी के. सो आई वाज जस्ट सेइंग कि जी git space push space the origin. Origin is basically the name of the remote, which I did. If you just name it any other word or any other letter, तो आप वो वाला यहाँ पे लिख देंगे. And then the branch itself. कि जी मुझे कौन सी branch करनी है? Because currently I'm on a master branch. I just want to push the master branch. If I just do this, so it started pushing all the content from my local repository to the online repository. पहले I was just refresh कि इस पे कुछ भी नहीं था. If I just now refresh, so you will be able to see कि जी I've added this file and अब इस पे कुछ चीज़ें हैं. On this screen you can see कि जी कौन कितने commits है repository में. I open the commit. This was the user who committed it. आप इसको खोलें. This was the files that have been changed. This was the changes that was made in the files. So pretty much you can see everything. अब उसके बाद मतलब there is a lot of other stuff in the repository. Let me just go through it just for the basic concept purposes. आप लोग आगे इनकी details लाजमी सीखेंगे. अब once there are big repository या organizational repositories, तो उस पर जितना नया काम होता है उसमें कोई भी issues आते हैं तो this is the issues section. I as a user can just report a new issue कि जी आपके कोड में ये चीज़ यहाँ पे गलत है. I can just do it and submit it. ठीक है. और उसके बाद if someone is working on your project and they want to send in their code or their changes or their features, so they'll create a request to your repository which is basically considered as this pull request. पुल रिक्वेस्ट में यहाँ पे वो आ रही होगी कि जी इस यूज़र ने आपकी इस रिपोजिटरी में ये चेंजेस करने के लिए पुश किए हैं. इफ़ यू वांट टू एक्सेप्ट इट जस्ट क्लिक मर्ज एंड ऑटोमेटिकली वो आपके वाले में ऐड हो जाएंगी. इफ़ यू वांट टू रिजेक्ट इट इवन यू कैन जस्ट डू दैट. एक्शंस रिसेंटली थोड़ा टाइम हो गया लॉन्च हुए. एक्शन इज समथिंग कि जी
ये थोड़ा सा आगे जाके काम आते हैं कि इफ़ आई एम फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वर्डप्रेस साइट है या वेबसाइट है जो मैं बना के मैनेज कर रहा हूँ या इट्स लाइव और इट्स डिप्लॉयड ऑन अ सर्वर और उसका जो कोड है या उसकी सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे गिटहब पे पड़ी हुई हैं। सो अब मेरे लिए ये हैसल फ्री क्या काम है कि एज सुन एज आई पुश समथिंग ऑन टू माई रिपोजिटरी या गिटहब रिपोजिटरी, तो मैं इंस्टेड ऑफ बार बार सर्वर पर डिप्लॉय करने पे आई वुड वांट कि जी वो ऑटोमेटिकली खुद ही होता रहे, जब भी मैं कोई नई चेंजेस ऐड करूँ तो ऑटोमेटिकली हो जाए। सो एक्शन इज पाइपलाइन जो कि आप लिखते हो टू ऑटोमेट द वर्क फ्लोज कि जी जैसे ही मास्टर ब्रांच पे कोई नई चीज़ आती है वो ऑटोमेटिकली सर्वर पे जाए, सर्वर पे जाके ये क्रेडेंशियल्स ऐड करे, क्रेडेंशियल्स में जाके इस पाथ में जाके इस वाले स्पेसिफिक फोल्डर में जाके ये जितनी भी फाइल्स हैं रिपोजिटरी की वहाँ अपलोड कर दे। जस्ट फॉर एग्जांपल आई जस्ट एक्सप्लेन दिस, सो दिस इज समथिंग दैट वेयर एक्शंस कम्स इन और आप पूरे के पूरे पाइपलाइंस और वर्क फ्लोज जो हैं वो ऑटोमेट कर सकते हैं यूजिंग दिस स्पेसिफिक। आपको कुछ ना कुछ यहाँ नज़र भी आ रहे होंगे, ठीक है। Node.js की एप्लीकेशन है Azure वेब पे करने के लिए पहले से बना हुआ है। सम अदर यूजर माइट हैव मेड इट, यू जस्ट क्लिक सेट अप दिस वर्कफ्लो, ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा एंड देन यू कैन जस्ट यूज इट और अपडेट इट अकॉर्डिंग टू योर नीड। प्रोजेक्ट्स इज समथिंग कि जी अगर मैंने इसको प्रोजेक्ट बनाया हुआ है तो ये बेसिकली इट्स मोर ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट काइंड ऑफ सेक्शन। क्या अगर मैं एज अ मैनेजर इस चीज़ को हैंडल कर रहा हूँ तो आई कैन क्रिएट बोर्ड्स, आई कैन plan my project, everyone it will be visible to all the people और डेवलपर जितने भी मेरे उसके लिए काम कर रहे होंगे तो दे विल बी एबल टू सी इट। उसके बाद विकी इज़ मोर लाइक डॉक्यूमेंटेशन, आपकी जितनी चीज़ें में डॉक्यूमेंटेशन होगी या कुछ सेक्शंस होंगे या जितनी भी चीज़ें होंगी दे विल बी एबल टू यू विल बी एबल टू क्रिएट इट हेयर एंड जितने लोग होंगे दे विल बी कमिंग टू योर रिपोजिटरी या योर डेवलपर्स दे विल बी एबल टू सी इट फ्रॉम हेयर। This is just a section for security policies and everything. You can just set this up. आप scanning alerts भी कर सकते हैं हर चीज़, मतलब this is something an added benefit. This is these are the insights for your repository कि आपके repository में कितने forks हुए, कितने issues खोले थे, कितने merge requests आए, कितने pulls हुए, ठीक है। और overall everything you can just कितने contributors हैं, कितने लोगों ने क्या add किया, क्या नहीं add किया, pretty much everything. And then comes the settings part. Settings then you can just delete it, update the वो visibility जो मैंने पहले की थी कि जो public से private कर दिया, private से public कर दिया. You can set up webhooks. You can set up your environment variables जो कि deployment में use होते हैं और इस तरह की चीज़ें। मतलब there is a lot of functionality. I would suggest you to go through each section and see कि जिसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप कर सकते हैं, ये हो सकती हैं। ओके सो अब मैंने किया ये था कि मैंने एक रिपोजिटरी लोकली बनाई। लोकली बनाने के बाद मैंने रिपोजिटरी को क्या किया कि जी आई पुश्ड इट फ्रॉम लोकल टू द रिमोट रिपोजिटरी। अब क्या होता है कि जी सपोज आई हैव एडेड अ न्यू फाइल, मैंने बस एज एन एग्जांपल मैंने यहाँ से ऐड कर दिया, लेकिन सपोज ऐसा करें कि एक और बंदा था जो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था एंड ही हैज एडेड अ न्यू फाइल विच इज़ अ रीडमी फाइल, ठीक है। उसने एक ऐड की। अब ये रिमोट सर्वर पे तो है लेकिन ये मेरे लोकल पे नहीं है, बिकॉज मेरे पास मैंने तो अपने चेंजेस पुश की थी, मतलब सब कुछ किया, वो पुश कर दी, लेकिन अब रिमोट पे देयर इज अ न्यू फाइल। सो इन ऑर्डर टू गेट दैट आई विल जस्ट राइट git pull origin master. जैसे ही आई विल रन दिस कमांड सो इट विल पुल ऑल द चेंजेस जो कि मेरे पुश करने के बाद हुई हैं ऑन टू द रिपोजिटरी इनटू माय लोकल सेटअप। अगर ये कुछ भी ना होता तो इट वुड हैव जस्ट सेड कि जी नथिंग हैज बीन चेंज्ड और देयर इज नथिंग टू पुल बिकॉज देयर वाज अ फाइल एडेड। सो इस वजह से इट जस्ट शोड अप हियर और आई हैव पुल्ड इट अप। अब इफ आई जस्ट गो टू माय रिपोजिटरी या फोल्डर यू कैन सी कि देयर इज अ रीडमी फाइल जो कि पहले नहीं थी। सो ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं पुलिंग और पुशिंग के, और इट वाज अ लोकल रिपोजिटरी जो मैंने बनाई, पुश किया, उसमें से जो चेंजेस एक्स्ट्रा थी वो मैंने पुल भी कर ली। अब देयर इज वन कॉन्सेप्ट कि जी देयर इज एन एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी, फॉर एग्जांपल यू एज अ डेवलपर वांट टू वर्क ऑन समवन एल्सेस रिपोजिटरी, ठीक है। तो आप उसको कैसे अपने लोकल पे लाओगे, ठीक है। देयर आर डिफरेंट वेज फॉर इट। Hello. जस्ट फॉर एग्जांपल हेलो
सॉरी टू कट यू ऑफ। आपने जो ये पुल का बताया कि एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब जैसे हमारे पास फाइल्स हैं ऑलरेडी, तो अगर हम लोग मतलब जैसे CSS चेंज कर दिया या कुछ भी किया, तो हमें वो उस वक्त पुल करते हैं जब हमने चेंजेस अपने फाइल में की कोड के। अच्छा ऐसे नहीं, ही- अब मैं आपको बताता हूँ कि हाँ, पुल का कॉन्सेप्ट क्या था कि सपोज यू एंड योर फ्रेंड इज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, ठीक है। अब यू बोथ आर वर्किंग रिमोट, ठीक है, एंड आप अपने चेंजेस पुश कर रहे हो, अपने चेंजेस पुश कर रही हैं, ठीक है। सो जैसे हमने चेंज पुश की थी, बेसिकली द टेस्ट फाइल जो हमने पुश की थी, सपोज द सिनेरियो कि आपने पुश की और उसके बाद एक दिन आपने काम नहीं किया, लेकिन उस दिन एक दिन में आपके दूसरा जो दोस्त है या आपके ओवरऑल पार्टनर है जो काम कर रहा है उस प्रोजेक्ट पे, ही पुश समथिंग न्यू, ठीक है। तो आपका जो रिमोट रिपोजिटरी उसमें तो चीज़ें जो हैं वो अपडेट हो गई, लेकिन बिकॉज यू डिडंट गेट द चेंजेस जो आपके कोलीग ने किए, सो इन ऑर्डर टू गेट दोज, या देयर सम इफ देयर इज एनीथिंग चेंज ऑन द रिमोट रिपोजिटरी जो कि लोकल में पहले आपके पास नहीं प्रेजेंट नहीं है, सो दिस कॉन्सेप्ट यहाँ पे ना पुल का कॉन्सेप्ट आता है कि यू वांट टू पुल ऑल द रीसेंट चेंजेस फर्स्ट एंड देन स्टार्ट वर्किंग। And this is a जो इसमें better approach होती भी ये है कि whenever you want to start working on something onto your local repository, it's always a good practice to pull all the updated changes from remote repository and then start working and then push yours. So this is basically the concept of pulling, कि मैंने सब कुछ update था मेरे local repository में, but remote पे because there was a new file which was a readme file जो मेरे local पे नहीं थी, so I had to pull it first. So my local repository and remote repository are on the same stage. अगर मैं pull ना करता तो they would have been on a different stage, और जैसे मैं push करने की कोशिश करता तो it would have asked me कि जी आप पहले changes pull कर लें and then push it. okay, thank you. No problem. I have अच्छा, a question. Excuse me. अच्छा, जस्ट डोंट रियली माइंड, साथ से मेरी बात हुई थी तो ही सेड के आस पे एंड पे Q&A सेशन है, मेरे पास एक दो चीज़ें रह गई हैं बिकॉज 15 मिनट का टाइम रहता है, तो आई वुड सजेस्ट कि मैं वो 5 मिनट में कंप्लीट कर लूँ, आखिर पे Q&A सेशन जो है उस पर हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं सब कुछ, Sure, no problem. क्योंकि सिर्फ एक कॉन्सेप्ट एक चीज़ रहेगी जो मैं बताना चाह रहा हूँ अभी बेसिक उसमें, ताकि आप लोगों को क्लियर भी हो जाए। अब जैसे आई वाज सेइंग कि जी देयर इज अ रिपोजिटरी, ठीक है, विच इज़ ऑनलाइन, जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ द सेम रिपोजिटरी, ठीक है। अब ये सपोज रिपोजिटरी ऐसी थी जो कि समवन एल्स वाज वर्किंग और यू वांट टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट और यू वांट टू डाउनलोड इट इनटू योर लोकल पीसी सो दैट यू कैन जस्ट सी इट और वर्क ऑन इट। अब उसमें क्या तरीके हैं? If you just click on this button, either you can just download the zip file, तो automatically आ जाएगी आपके पास डाउनलोड, जिस तरह नॉर्मल डाउनलोड होता है, and it will be a git repository and you can just start working. The other thing is अगर आपके पास GitHub desktop यूज कर रहे हैं, you just click on this and it will automatically go there. तीसरा ये है, आपने रिपोजिटरी का लिंक कॉपी किया कि जो भी रिपोजिटरी if it's public and you can access it, तो आपने वो लिंक कॉपी किया, you go to your git bash. Let me just change the folder just so we can just see it. अब इसमें वो रेपो नहीं है, so अब मैंने क्या करना है, मैंने लिंक कॉपी कर लिया। I want to download the repository from remote, which is basically GitHub, to my local setup. So I'll use this concept of cloning. अब क्लोन क्या करता है, जस्ट बाय इट्स नेम क्लोन क्या करेगा कि जो मैं इसको लिंक दूंगा जिस रिपोजिटरी का, वो उसको डाउनलोड करके उसका एक क्लोन बना देगा मेरे लोकल सेटअप पे, बेसिकली उस पूरी रिपोजिटरी को डाउनलोड करके मेरे डाउनलोड वाले फोल्डर में रख देगा। सो इट वाज git space clone space link. If I just enter this out, you can see cloning into this repository, ठीक है। अब क्लोन हो गई है। Now if I just change my directory to this, so you can see मैं उस रिपोजिटरी में आ गया हूँ। If I type ls, तो इसमें ये दो फाइल्स हैं, so apparently जितनी भी होंगी वो सब कुछ होगा, it got cloned और वो मेरे लोकल पे। अब you can just work on this as much as you want। आपने कोई चेंजेस ऐड की,
ठीक है, just for example, let me add one more file. I've added this file. You can see that this has been added. I've asked Git to track it. I've committed it out. If I just type git log, तो 3 आएंगे because एक था जो पहले उस पे हुआ था, फिर readme वाला हुआ था, और तीसरा जो मैंने अभी किया. So you can see the complete history. अब जैसे हमने पहले सेटअप किया था ना कि हमने उसको रिमोट सेट किया था, अब क्योंकि आपने ये रिपोजिटरी क्लोन किया है फ्रॉम अ लिंक ऑलरेडी, तो गिट डज इट ऑन इट्स ओन. ठीक है, क्योंकि वो तो लोकली सेटअप की थी, तो वी हैड टू लिंक इट अप. इसको हमने अभी क्लोन किया है. सो इफ आई जस्ट टाइप गिट रिमोट -v, it will automatically show me these. Why? Because मैंने क्लोन किया है, तो ये जो काम है क्लोनिंग पे, वो गिट खुद ही कर देता है, and it sets the remote on its own. So you just need to push it first. Now if I just type git push origin master, it will push the changes from this repository to the ऑनलाइन वन. अब ये सब कुछ ऐसे क्यों हो रहा है? बिकॉज मेरे यूजर और मैंने उसको दूसरी जगह एक्सेस करके वो किया, तो आई एम जस्ट एबल टू पुश इट अप. इफ यू कैन सी देयर वाज दिस न्यू फाइल test1.txt and now it has all the 3 files. So this is the basic concept कि जी एक तरीका ये है कि आपने लोकल बना के वहाँ से उसको लिंक करके पुश किया. ठीक है, दूसरा ये था कि अगर आपने क्लोन करना है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी को, तो दिस concept of cloning comes if git space clone the link and it automatically clones the repository or downloads the repository. और वैसे ये है कि जी अगर आपने लोकल किया हुआ था और इवन इसमें भी if you want to pull any changes जो सर्वर पे हैं और आपके लोकल सेटअप पे नहीं है, ठीक है, तो ये टाइप दिस कमांड git pull, or in this way you'll be able to just do all the stuff. अब this was all the basic stuff that you needed to know. इसके बाद और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि I can explain, लेकिन let me just go through them quickly ताकि हम Q&A section पे जा सकें, and because that's more often important. अब if I just talk about GitHub, power of Git or power of GitHub, how is it useful and how important is it? If you can see, देखें आपकी जो प्रोफाइल है ना GitHub पे, ठीक है, this profile is a CV for you. If you are a developer or if you are a person who just keeps working, so this profile is something जो कि आपको बड़ी काम आएगी. तो if you can just make it as good as it can be, आप जितना काम है इस पे put up करें on GitHub so that people can just see it, they can see कि जी आपको क्या काम आता है, किस तरह से आता है और everything. Because this profile really helps you even land jobs. This can help you build your portfolio, ठीक है, और this is like a social media for developers, मतलब no strings attached. Because इसमें people can just follow you, they can see your work, you can follow other people, you can star or mark important repositories that you find on GitHub. Suppose you see a repository from Google that okay, this is something really cool. Okay, you just want to get linked with it, or keep yourself posted with it. Just start the repository. It will just push you all the updates for that repository. Okay, and then pretty much you can join organizations. इसमें organizations different बनती हैं, ठीक है. If I just show you some organization, okay, I was just recently I was working with someone. उसमें एक organization I started up for them, ठीक है. It was a project from Fiverr, just by the way. So this is something जो कि if you are good at it, you can pretty much give your services and get done with it. ठीक है. So अब I created this organization for them. ठीक है. इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप कौन से बंदों को गाइड कर सकते हैं, कितनी टीम्स हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है. If I just open any project, ठीक है, this is the content for it, और इस तरह की चीज़ें ना. So this is something really useful and it can help you in a lot of different ways. So I would suggest कि you should just start with it, and मैं कहूँगा ये कि आप start एक से ही करें. As soon as you start growing on GitHub या GitLab या Bitbucket, उसके बाद you just move to different platforms as well. So you have visibility on almost all the platforms. So overall explaining, this was all the basic stuff के Git और GitHub में फ़र्क क्या है,
ठीक है, बेसिक कमांड्स क्या है, इंस्टॉल करने के लिए यू जस्ट नीड टू यूज git bash एंड इट विल एंड कॉन्फ़िगरेशन के लिए आई गिव यू द कमांड्स, आप वो यूज़ करें। उसके बाद ठीक है, ओवरऑल ये सारी बेसिक चीज़ें। इसमें देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि आई कैन नॉट रियली कंप्लीट इन एन और इवन आई कैन जस्ट नॉट कंप्लीट इन 4-5 hours because it comes with practice, it comes with time. और इसमें as soon as you'll move forward with other sessions in future जो आपके 3 रहते हैं, और इवन अपने आप पे भी आप खुद से भी थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करेंगे तो you'll get to know कि there is a lot of stuff that is available in Git or GitHub or how useful it is. So this was almost it from my side. आप लोगों के जो भी questions हैं, you can just share them with me and I would love to just answer them. Okay, I just want to add that like अभी जो है 10 मिनट का Q&A सेशन होगा, और उसके बाद क्योंकि एक लास्ट पे एक फन सेशन होगा जिसके अंदर एक कंप्लीट आपका जो सेशन है उसका रिकैप होगा। तो यू हैव 10 मिनट्स, तो आपके जितने भी कोई क्वेश्चंस हैं आप वो पूछ लें, और उसके बाद जो है एक लास्ट पे जो है एक फन सेशन होगा। सो यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस नाउ। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि गिटहब में अगर यार, हम जाएं तो नाम हमारे बता पास दें, वहाँ नाम बता पैकेज। दें, नाम बता जी, दें। अब्दुर्रहमान जी, मेरा सवाल ये है कि अगर हम गिटहब में जाएं तो वहाँ पैकेज आता है और प्रोजेक्ट आता है, तो ये क्या चीज़ है? क्योंकि आपने भी अपनी प्रोफाइल में कोई पैकेज या प्रोजेक्ट नहीं ऐड किया हुआ, तो इसके बारे में बताएं। अच्छा, पैकेज और प्रोजेक्ट में मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। फॉर एग्जांपल यू आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, ठीक है, और उसके डिफरेंट रिलीजेस होते हैं, ठीक है। जिस तरह आप लोग के वर्जन अपडेट होते हैं ना, सपोज एनी सॉफ्टवेयर, सपोज टीम्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सपोज टीम एक सॉफ्टवेयर है जो मैंने बनाया है, ठीक है, और वो ओपन सोर्स है, ठीक है, और पीपल आर यूजिंग इट। अब जो पैकेज है ना, पैकेज इज समथिंग जहाँ पे आप यू कैन ऐड द exe फाइल्स या फिर all the stuff related to it. मुझे अगर if I can just find something I can just show you as well. बेसिकली पैकेज ये होता है कि जो आप के पास जो सारी की सारी आपकी वो होती है ना exe फाइल, सपोज मैंने एक सॉफ्टवेयर बना के रख तो दिया, लेकिन लोगों के लिए आसान, ये नॉन डेवलपर्स के लिए उसको इंस्टॉल करना आसान कैसे कि दे जस्ट नीड इंस्टॉलेशन फाइल, वो डाउनलोड करें, क्लिक करें, देन रन हो जाए, ऐसा ही है। सो बेसिकली आपकी रिपोजिटरी के अंदर पैकेजेस में आप वो चीज़ ऐड कर देते हो, ठीक है। और इफ़ आई एम ए नॉन डेवलपर और मुझे आपका सॉफ्टवेयर अच्छा लगता है और मैंने यूज़ करना है, तो आई जस्ट गो टू दैट पैकेजेस मैंने डाउनलोड किया, इट वाज इट विल बी एन इंस्टॉलेशन फाइल, ठीक है। exe फाइल होगी फॉर विंडोज़, DMG फाइल होगी फॉर मैक। आई जस्ट डबल क्लिक इट, इट विल गेट इंस्टॉल्ड और मैं उसको यूज़ करने लग जाऊँगा। और जो प्रोजेक्ट्स वाली चीज़ थी, प्रोजेक्ट्स वाली चीज़ इज़ बेसिकली फॉर प्रोजेक्ट मैनेजर्स। आप अगर थोड़ा सा भी किसी डेवलपमेंट साइड पे रहे हो या ओवरऑल कंपनी स्ट्रक्चर में रहे हो, सो फॉर ईच प्रोजेक्ट देयर इज अ प्रोजेक्ट मैनेजर जो कि स्क्रम्स मेंटेन करता है, जो काम मेंटेन करता है, और विच गिव्स डायरेक्शन टू द टीम कि जी पहले हफ्ते में हमने ये काम कंप्लीट करना है, दूसरे में ये करना है, तीसरे में ये करना है। और आपकी डिस्कशंस होती हैं, आपके प्रोजेक्ट बोर्ड्स होते हैं, आपके स्क्रम मीटिंग्स होती हैं, आपके स्क्रम बोर्ड्स होते हैं, ठीक है। और सो बेसिकली प्रोजेक्ट सेक्शन में आप वो चीज़ें ऐड करते हो एज अ मैनेजर, और जो पैकेजेस हैं वहाँ पे आपकी DMG फाइल्स या exe फाइल्स होती हैं। ओके, थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम। साम जी सर, मेरा नाम दाऊद है। मुझे को आपसे ये एक सवाल पूछना था। आपने बोला कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता है, मतलब सोशल मीडिया टाइप गिटहब होता है डेवलपर्स के लिए। बिल्कुल। तो जैसे अगर अब ना कोई क्लाइंट आएगा, वो आपका गिटहब देख के ही आपको काम देगा, जैसे कुछ प्रोजेक्ट देगा या कुछ करके आपका गिटहब देख के देगा। तो हम ऐसे इफेक्टिव जैसे हमारी ओपन सोर्स जो हमारी जो होती हैं रेपोज या हमारा जो पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट जैसे काम होते हैं जो ओपन सोर्स होते हैं, तो उसके हम ऐसे मतलब नाम किस तरह से, रेपो के नेम किस तरह हम अच्छे लिख सकते हैं, इनकी रीडमी किस तरह हम बेहतर बना सकते हैं, बिल्कुल। ये मुझे। अच्छा, अब देखो ना, मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये अगर आप ये प्रोजेक्ट देखो ना मेरे प्रोफाइल पे, दिस प्रोजेक्ट, अब ये जो प्रोजेक्ट था ना, दिस वाज अ प्रोजेक्ट जो मैंने इंटर्नशिप पे किया था जर्मनी में, ठीक है। और आई मेड इट ओपन सोर्स। अब इसमें इफ यू सी इट हैज़ अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये इसकी जो रीडमी फाइल है, रिटन रियली गुड, इसका DOI जो है वो रजिस्टर्ड है, ठीक है। अब ये जो आपको ये पूरा जो प्रोजेक्ट है ना, इट विल गिव यू अ वेरी प्रोफेशनल काइंड ऑफ अ लुक,
ठीक है। और इससे ना पीपल विल बी एबल टू सी कि जैसा हाउ मच वर्क यू नो या आपने कैसे काम किया था या क्या नहीं किया था। सो इफ़ यू कैन सी यहाँ पे मैंने इसके रिलीजेस भी बनाए हुए हैं, ठीक है, इसके 3 रिलीजेस हैं अब तक। और उसके बाद इसका एक नेक्स्ट वर्जन प्रोजेक्ट आ गया था जो कि अभी पब्लिक मैंने नहीं किया हुआ, आई कैन नॉट रियली शो यू, लेकिन वो हो जाएगा, ठीक है। वो इसका कैरी ऑन वर्जन है, ठीक है। और इसमें आप देखोगे इसमें डिटेल्स भी लिखी हुई हैं, इसमें टैग्स भी डले हुए हैं, इसमें लाइसेंसिंग भी हुई हुई है। दिस इज बेसिकली जनरल पर्पस लाइसेंस, पीपल कैन जस्ट यूज इट बट दे कैन नॉट क्रिएट अ बिजनेस आउट ऑफ दिस कोड जो मैंने इसको पब्लिक रखा हुआ है। और उसके बाद हर चीज़, तो दिस इज द स्टफ जो कि मैटर करता है आपकी प्रोफाइल विजिबिलिटी में। उसके बाद आप कौन सी चीज़ों के पार्ट रहे हो। आई हैव बिन एम्बेसडर, मतलब कैंपस एक्सपर्ट, तो ऑब्वियसली ये बैज इसलिए मेरे पास कुछ बैजेस हैं, बट दीज बैजेस आर जस्ट लाइक नॉर्मल बैजेस जो आपको मिल जाएंगे। प्रो इज समथिंग जो आप डेवलपर पैक लेते हो गिटहब का, तो यू जस्ट गेट इट। ऑर्गेनाइजेशन में वो शो होती हैं जो कि जी कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट रहे हो, उसका काम कितना है, ठीक है। ऑल दिस स्टफ और ऑल दीज स्टैट्स मेक इट मोर विजिबल और मेक इट मोर प्रोफेशनल फॉर योर क्लाइंट्स या फिर इवन योर पोटेंशियल एम्प्लॉयर। Okay. Thank you, sir. No problem. Assalamualaikum. Welcome. My name is Bilal. My question is, there is a file named readme.md. What's the purpose of that file? Is it helpful regarding anything or not? Can you explain? जैसे मैंने आपको दिखाया था ना अभी इस प्रोजेक्ट में, ठीक है। अब MD इज बेसिकली मार्कडाउन फाइल, जिस तरह आपके TXT होता है ना, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है, MD इज अ मार्कडाउन इज अ फॉर्मेट, ठीक है, जो कि इस पे यूज हो रहा होता है। सो दिस ऑल फाइल इज अ रीडमी फाइल। सो इवेंचुअली आपके प्रोजेक्ट में तो इट्स रियली यूजफुल। वाई? बिकॉज इट गिव्स, अगर ये अच्छे से लिखी हुई हो तो इट गिव्स सम पीपल जो कि आप देख रहे होते हैं या फिर आपके जो क्लाइंट्स होते हैं, ब्रीफ ओवरव्यू कि जी व्हाट दिस प्रोजेक्ट इज अबाउट। अगर आपने देखो तो इस प्रोजेक्ट का टाइटल ये है, उसमें ये कुछ हो रहा है, आपने अगर एज अ डेवलपर स्टार्ट करना है तो आप ये करो, बिल्ड क्या क्या हुआ है, एंड्रॉइड स्टूडियो और LSL यूज हुई है, कंट्रीब्यूट कैसे कर रहे हैं, ऑथर्स कौन है, लाइसेंसिंग क्या है इसकी, और साइट करना है अगर आपने काम यूज़ करना है तो यू नीड टू साइट इट अप। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना ऑब्वियसली आपकी रीडमी सेक्शन में आती हैं, तो दैट्स रीडमी इज़ यूजफुल फॉर दो स्पेसिफिक पर्पसेस। ये हम खुद मेंटेन करते हैं या ये गिट खुद मेंटेन करता है इनको ऑटोमेटिकली? नहीं, ये आप खुद मेंटेन करते हो, आप खुद लिखते हो इस पूरे फाइल को, ठीक है। आप उसमें जो कुछ ऐड करना चाहते हो, पिक्चर्स ऐड करना चाहते हो, कुछ भी ऐड करना चाहते हो, यू जस्ट डू इट, और वो वहाँ पे विजिबल होगी सबके लिए। Okay, thank you. Excuse me, I have a question regarding remote and local GitHub ना। You have told कि locally हमने एक टेस्ट फाइल बनाई और फिर उसका हमने पुश किया remote GitHub पे। So why we are doing that? I mean यही चीज़ हम डायरेक्टली रिमोट पे भी कर सकते थे। Why we are doing like कि वहाँ पे फाइल बनाई, फिर पुश किया, फिर दोबारा पुल करें, फिर उसमें एडिटिंग करें। So is it possible कि हम जो रिमोट GitHub होता है उसी पे ही सारी फाइल्स क्रिएट करें डायरेक्टली? आप बना सकते हैं, डेफिनेटली इट्स पॉसिबल, लेकिन जो एक्सेसिबिलिटी है ना, बिकॉज दिस इज द वेरी बेसिक स्टफ ना, कि हमने एक TXT फाइल बनाई, ऐड कर दी, उसमें कुछ लिख दिया, ठीक है। वंस यू आर डेवलपिंग या वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, ठीक है, तो आपके पास एक फाइल तो नहीं होगी, यू विल बी वर्किंग विद मल्टीपल फाइल्स। जैसे आप इसमें देखें, इस रिपोजिटरी का साइज इज ऑलमोस्ट few hundred MBs, तो इसमें सारी लाइब्रेरीज हैं, हर चीज़ हैं। तो इफ़ यू स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम दिस exactly this GitHub site itself, so things won't be really feasible because it's just a website जहाँ पे आपने अपनी रिपोजिटरी रखनी है। अब ये प्रोजेक्ट है वो एंड्रॉइड में बिल्ट हुआ है, एंड्रॉइड में मैंने लोकली काम करना है और सब कुछ, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई शोड यू कि जी लोकली कैसे पुश एंड पुल करते हैं, बिकॉज प्रोजेक्ट पे आप काम तो आप लोकल पे कर रहे होगे, एंड्रॉइड स्टूडियो आपके लोकल पे होगा, सपोज एंड्रॉइड पे अगर आप काम कर रहे हो, ठीक है, उस पर जितना काम होगा वो सब कुछ लोकली ही होगा। Either you can just add the files there, but उसकी जो वो है ना एक्सेप्टेबिलिटी है वो आगे जाके इतनी ज़्यादा नहीं रहती। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा नाम असद है और सर मैं अभी ये डेवऑफ की इंटर्न कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ चीज़ें थोड़ी पूछनी थी टेक्निकली। ये गिटहब के अंदर आर्टिफैक्ट का रेपोजिटरी होती है, एक इसके अंदर AWS के अंदर भी आर्टिफैक्ट की रेपोजिटरी या AWS के आर्टिफैक्ट का एक सर्विसेज फीचर यानी शो करवाया हुआ है, इसके अंदर थोड़ा डिफरेंस बता दें। और दूसरा ये कि CI/CD अगर मैं गिटहब में करूं तो उसके लिए एक्शंस या हुक ये कैसे थोड़ा सा डिफाइन कर दे पाथ। अच्छा, जो इफ आई टॉक अबाउट CI/CD ना,
तो एक्शंस एक तो अगर आप गिटहब में सब यूज़ करते हो तो ठीक है, एक्शंस तो गिटहब की अपनी एक चीज़ है ना कि जी आपको गिटहब की ही बनी चीज़ यूज़ करनी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप एक्शंस यूज़ करो। मतलब देयर आर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स, ट्रेविस है, ट्रेविस की कॉन्फ़िगरेशंस हैं, सर्कल CI है, उसके अलावा यू गेट अ लॉट ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस। आप ओवरऑल सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन YAML फाइल्स के साथ कर लो, ठीक है। एक्शंस तो इस तरह से है कि जी ये गिटहब के ऊपर आपको बना मिल जाता है। अगर आप ये नहीं यूज़ करते सो आप ट्रेविस सेटअप कर लो, इसके साथ इंटीग्रेट हो जाती है आपकी रिपोजिटरी के साथ। आप सर्कल्स के सेटअप कर लो, उसके बाद यू जस्ट टाइप द कॉन्फ़िगरेशंस या ऐड अ कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहाँ पे विद इन योर रिपोजिटरी। तो जैसे ही आप लोग पुश करोगे तो इवेंचुअली दैट कॉन्फ़िगरेशन फाइल विल गेट एक्टिव। वो सर्कल CI या ट्रेविस या जो भी आपने यूज़ किया होगा इट विल कनेक्ट विद दैट। उसके हिसाब से जितना आपने स्क्रिप्टिंग में जो भी लिखा होगा जी ये एक्शन परफॉर्म करना है, इट विल डू द दो स्पेसिफिक एक्शंस एंड इट विल जस्ट परफॉर्म। तो जो CI/CD वाला जितना ये पार्ट है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप एक्शंस ही यूज़ करें। एक्शन इज समथिंग जो गेटअप का अपना है। आप ट्रेविस यूज़ कर लें, आप सर्कल CI यूज़ कर लें, आपकी और कॉन्फ़िगरेशन या CI टूल है आपके पास। तो इवन जो AWS की बात कर रहे हैं आप, AWS पे अपना जो उनका DevOps है, सॉरी वो Azure का है, AWS का कोड कमिट में अपना जो सेटअप है CI/CD का, you can use that as well. Azure पे कर रहे हैं, Azure का अपना DevOps का सेटअप है, you can just connect your GitHub repository to that specific, तो आप वहाँ पे कनेक्ट कर लें। मतलब there are a lot of ways to just do that. Excuse me. और एक चीज़ आप शायद रखी थी, सॉरी जस्ट टू क्लियर हिम आउट, आपने आर्टिफैक्ट का पूछा था। आई एम नॉट रियली वेल ऑफ विद AWS, क्योंकि मैंने AWS पे इतना काम नहीं किया, बिल्कुल बेसिक से किया हुआ है। आर्टिफैक्ट GitHub पे आई हैव नॉट रियली यूज्ड देम। So yeah, Okay. my question was कि हाँ, जब रिएक्ट पे आप एप्लीकेशन बना रहे होते, जैसे मैंने थोड़े दिन पहले रिएक्ट पे एक एप्लीकेशन बनाई, तो उसके डिप्लॉयमेंट के हवाले से पूछना था मुझे दैट हाउ देन यू डिप्लॉय द एप्लीकेशन। क्योंकि पहले तो ये होता था कि हम छोटी छोटी एप्लीकेशंस बना रहे होते थे, उसको डिप्लॉय करना होता था, आप सेटिंग्स पे गए, फिर उसको मास्टर ब्रांच कर दिया तो वो आपकी डिप्लॉयमेंट लिंक आ जाती थी। लेकिन रिएक्ट के बड़ी एप्लीकेशन पे जैसे आप काम कर रहे हो तो उसकी डिप्लॉयमेंट फिर हम लोग किस तरह से करें अगर हम लोग गिटहब पे फाइल्स रेपो बना रहे तो? हेलो, You are mute. Yes, हाँ, okay. Am I audible? yes. हाँ, अच्छा, आई वाज जस्ट सेइंग कि जो जो आपकी डिप्लॉयमेंट्स है ना, दे आर नॉट रियली डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन गिटहब या गिट, लेकिन सिनेरियो इस तरह से है कि आपकी फॉर एग्जांपल रिएक्ट या Node.js की जो एप्स हैं, ठीक है, सो देयर आर थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स, Heroku है, ठीक है, आप Heroku के साथ अपनी डिप्लॉयमेंट सेटअप कर लें विद गिटहब की जो आपकी रिपोजिटरी है, ठीक है, तो इट कैन बी डिप्लॉयड देयर। और जो आप वो बटन और उसकी चीज़ बात कर रही हैं, ऑब्वियसली आपकी जो ऐप का साइज है रियली डजंट डिपेंड अपॉन गिटहब या उस तरह की कोई चीज़, इट डिपेंड्स अपॉन योर थर्ड पार्टी होस्टिंग। फॉर एग्जांपल आप टेस्टिंग के लिए कर रहे हो तो देयर इज अ प्लेटफॉर्म विच आई नो, Heroku ऐप के नाम पे, ठीक है। आई वुड सजेस्ट यू कैन सी दैट उसकी जो डिप्लॉयमेंट्स हैं वो डायरेक्ट लिंक हो जाती हैं विद योर गिटहब रिपोजिटरी, दैट एज सुन एज यू पुश समथिंग अप वो ऑटोमेटिकली उस पर पुश करके you'll have a link of that app and it will get updated there. So ये आपका क्वेश्चन यही था ना, इसके अलावा कोई और चीज़ तो नहीं थी? जस्ट लेट मी नो। नहीं, बस मुझे यही पूछना था कि ज़रूरी तो नहीं है ना कि हम लोग डिप्लॉय गिटहब से ही करें, मतलब अगर मैं उस किसी और जगह से भी डिप्लॉय कर हाँ रही नहीं, हूँ बिल्कुल तो बिल्कुल भी नहीं, ज़रूरी नहीं है। डिप्लॉयमेंट की मैं बात कर रहा था, वो तो सिर्फ ये था कि अगर आप करना चाहते हैं तो यू कैन डू इट। इफ़ यू डोंट वांट टू डू इट, यू कैन जस्ट नॉट सेट इट अप देयर। आप अपने लोकल से कर लें, आप किसी और CLI से कर लें, या आप डायरेक्टली किसी और से कर लें, मतलब दैट डजंट रियली अफेक्ट दिस। ओके, थैंक यू। Okay. Assalamualaikum. I have a question for this. I want to know that how DevOps engineer and quality assurance engineer. आपकी आवाज़ नहीं आ रही अजीज़, आई गेस अजीज़।
Hello. Aziz, you are mute. वो उनका म्यूट नहीं है, आई गेस उनका नेटवर्क का इशू है शायद, बिकॉज वी आर गोइंग टू लाइक राफिया, आपका कोई क्वेश्चन है तो ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर. यस, आई हैव अ क्वेश्चन सर. आपने इनिशियली बताया था कि ये गिट जो है हमारे पास कंट्रोल वर्जन 15 है, तो अभी जो हमने फाइल बनाई वो मास्टर्स पे हमने फाइल क्रिएट की, तो ये वर्जन जो है ये कौन मेंटेन कर रहा होता है? आई मीन गिट ऑटोमेटिकली कर रहा होता है या हमें मैनुअली करना होता है? लेट्स सपोज मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, अब मुझे उसका सेकंड वर्जन बनाना है, कुछ चेंजेस करनी है, तो वो जो सेकंड वर्जन होगा अगेन इनिशियल जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया था उसकी कॉपी बना के फिर उसमें एडिटिंग करनी है, आई मीन दैट कि वो मुझे मैनुअली करना है, या जिस तरह आपने लॉग करके दिखाया था कि ये चेंजेस हुई हैं, इसने चेंजेस किए, दिस वाज द टाइम, तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली होती हैं या मैनुअली हम डिफरेंट ब्रांचेस बना के कर रहे हैं? अच्छा, ब्रांचेस वगैरह जो होती है ना वो तो आप मैनुअली बनाते हो, लेकिन जो ये सब कुछ मेंटेन हो रहा है ना कि जी कौन सी फाइल क्या चेंज हो रही है, लॉग में जितनी चीज़ें आ रही थी, दे ऑल वर जस्ट दे आर मेंटेन बाय गिट इटसेल्फ कि जी कौन सी चीज़ें कितने कमिट क्या. और आप जो वर्जन की बात कर रही है ना कि फॉर एग्जांपल आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, नाउ यू आर प्लानिंग टू ऐड वर्जन 2 टू इट, तो उसके बाद अगर आप वहीं से यूज़ करना चाहती हैं तो जस्ट यू कैन जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द सेम फोल्डर या सेम रिपोजिटरी एंड ऐड योर चेंजेस. अब जो एग्जैक्ट वर्जनिंग है ना वो जो आप जिसमें आप जा रही हैं कि जी यू वांट टू टैग कि जी ये वर्जन 1 है, ये वर्जन 2 है, ये वर्जन 3 है, उसकी एक सेपरेट वो चीज़ भी है. वर्जन कंट्रोलिंग इटसेल्फ इट्स लाइक वर्जन कंट्रोलिंग इज मोर लाइक हर फाइल का, हर चीज़ का, हर एक पार्ट का ट्रैक रखा जा रहा है और वो गिट खुद करता है. ओके, थैंक यू. ओके, ठीक है. लाइक क्वेश्चन जो है आप इधर एंड करते हैं, तो अगर कोई भी आपके फर्दर क्वेश्चंस हो तो आप अली अगर आप कोई अपना आप कॉन्टैक्ट वगैरह मेरा लिंक्डइन शेयर कर दें. हाँ श्योर, जस्ट टाइप माई फुल नेम, आपको लिंक्डइन वगैरह में मिल जाएगा. बाकी अगर किसी को कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप इजी होते हैं तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल, यू कैन जस्ट पिंग मी. आप लिंक्डइन भी है, ओवरऑल जस्ट टाइप माई फुल नेम, आपको लिंक्डइन मिल जाएगा, इंस्टा मिल जाएगा, फेसबुक वगैरह सब कुछ मिल जाएगा. तो इंस्टेड ऑफ मी शेयरिंग जस्ट टाइप माई फुल नेम जो है अली अयूब खान. जिसको कोई कांटेक्ट करना है तो यू कैन जस्ट डू इट, आप जिस प्लेटफॉर्म पे आप चाहते हैं. Okay, so that's it from the Q&A session. So thank you, Ali Ayub, for that wonderful session. I hope like the audience will have. Yes. Thank you so much for just inviting me. बाकी ये है कि I really hope I did some justice with the introduction of Git or GitHub. Yes, that was an informative session. बाकी अगर कोई से कोई questions है, कोई confusion है, you can just ping me up. I would love to help. Okay, great. So thank you, Ali, for joining our today's session. So now, yes, if you have any further question, now you can like contact it on LinkedIn. Like we have to move on to our further session. Okay, that's okay. हाँ जी, मुझे भी बस आप कांटेक्ट कर दीजिएगा. बाकी साथ I'll have to leave for some other work now. Thank you for just inviting. और definitely आप मुझसे किसी का भी क्वेश्चन है, you can just ping me up कहीं पे भी. Okay. Thank you, Ali, for joining. Thank you so much. Allah Hafiz. अच्छा, लाइक अभी आपके साथ एक छोटा सा एक फन सेशन होगा जिसके अंदर लाइक एक रीकैप होगा आपके कंप्लीट सेशन का, जो कि अभी हमने सारा कवर किया. तो काइंडली मुझे बताइएगा कि मेरी स्क्रीन आपको जब विजिबल हो. मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी विजिबल है. Yes. ड्यूरिंग द सेशन कोई भी अगर कोई ग्लिच हो, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन का इशू हो सकता है, तो मुझे काइंडली आप ज़रूर जो है वो बताइएगा म्यूट माइक अनम्यूट करके. तो ये छोटी सी गेम है, तो आप जो कि ये ऑलरेडी कुछ जो हमारे पुराने मेंबर्स हैं उन्होंने ज्वाइन कर लिया ऑलरेडी. तो इसके लिए करना क्या है कि आपने एक अनदर डिवाइस लाइक इफ़ यू आर कनेक्टिंग फ्रॉम लैपटॉप, सो आप एक मोबाइल के ऊपर जो है इसको ओपन करें. यू जस्ट हैव टू गो टू www.kahoot.it. ठीक है, ये आपको मेरी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि www.kahoot.it. इस पे जाएं. जब आप इसको क्लिक करेंगे आपको एक पिन की ऑप्शन आएगी, तो आपने ये जो पिन है वहाँ पे डालनी है. ठीक है, तो एक चीज़ काइंडली रिमेंबर कि आपको दूसरी स्क्रीन के ऊपर इसको ओपन करना है.
माइक्रोसॉफ्ट टीम्स आपने लीव नहीं करना, क्योंकि आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन शो होंगे और आपकी जो स्क्रीन है उसके ऊपर आपको 4 ऑप्शंस नजर आएंगे। ठीक है, उन ऑप्शंस को आपने सेलेक्ट करना है। इट्स जस्ट लाइक अ एमसीक्यू टाइप लाइक क्विज। ठीक है, तो यू हैव 5 मिनट्स। एक अनदर लाइक फ़ोन या डिवाइस यू लेके उसके ऊपर ये लिंक पे जाएं www.kahoot.it और वहाँ पे जाके ये पिन एंटर करें। ओके, सो नाउ वी हैव लाइक देखते हैं अभी सबसे इंटरेस्टिंग बंदा कौन यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है। सो वी हैव एमन, बुशरा, कैग, नूर, असरा, एतजाज। वी हैव एतजाज। मैंने अभी थोड़ी देर पहले मुंशी भी है हमारे साथ अभी। लाइक हियर वी हैव, किधर गया मुंशी? यस, वी हैव मुंशी विद अस। सो वी हैव 46। एक मिनट मुझे बताइए कि आपको साउंड शो होती है कि नहीं, म्यूजिक आ रहा है आपको? म्यूजिक काइंडली मुझे बताइएगा कि म्यूजिक ऑडिबल है आपको? यस। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी जी मेरे पिन बता दें, पिन मेरे पास नहीं आई। मैं पिन अभी आपको मेरी स्क्रीन पे शो हो रही होगी 6848295। शो नहीं होती ना? नहीं, आपने पिन लिखनी है वहाँ पे। नहीं यहाँ पे जी मिल गई। ओ अच्छा, म्यूजिक मुझे बताइएगा कि म्यूजिक ऑन है। अच्छा, ये म्यूजिक थोड़ा सा समझ लें कि क्योंकि हैलोवीन यस, क्योंकि हैलोवीन आ रहा है तो हैलोवीन के ऊपर एक म्यूजिक है, तो इससे डरना नहीं। ठीक है, तो आप लोगों ने घबराना नहीं। ठीक है, ओके। मेरी आवाज इस म्यूजिक के साथ आपको ऑडिबल है? सबको क्लियर है? ताकि मैं फिर स्टार्ट करूं। ओके, ठीक। बस वी हैव 2 मिनट्स मोर, तो आप लोग सब ज्वाइन कर लें। कितने हैं हमारे अटेंडेंस, कितने हैं अभी? वी हैव 99। ओके, सो वी आर नाउ 69, से जल्दी से ज्वाइन कर लें आप सब। वी हैव 2 मिनट्स मोर, तब तक थोड़ा सा म्यूजिक बढ़ा देते हैं। ओके, लाइक ऑलमोस्ट अब ठीक है। जस्ट 1 मोर मिनट। आपको रूल्स बता देता हूँ कि ये गेम होगी किस तरह की, कि इसके अंदर कुछ एमसीक्यूज टाइप होंगे। आपको जो है मेरी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन शो होगा, इज जस्ट लाइक कौन बनेगा करोड़पति टाइप। ठीक है, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन, 2 कंप्यूटर स्क्रीन है, मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आपको जो है कुछ क्वेश्चन शो होंगे और आपने अपनी जो स्क्रीन है उसके ऊपर उन क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना है। तो उसके ऊपर आप सबकी एक समझ लें कि एक, चलें बस स्टार्ट करते हैं फिर। वी हैव एनफ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आर यू रेडी? मुझे बता दें सब रेडी हैं फिर? यस। यस। अच्छा, पहला क्वेश्चन जो है, इफ एवरीवन इज रेडी टू प्ले, ये पहला क्वेश्चन जैसे आपको बताने के लिए है कि इस तरह की एक ऑप्शन होगी। आपको मेरी स्क्रीन पे शो हो रहा है क्वेश्चन? तो ये जस्ट एक सैंपल क्वेश्चन है जो कि आपको बताने के लिए कि इस तरह का क्वेश्चन है। पहले मुझे काइंडली बता दें कि आपको क्वेश्चन शो हो रहा है मेरी स्क्रीन पे? यस ओके, हो रहा है। ठीक है। एक चीज का ध्यान रखना कि आपका एक टाइम लिमिट भी चल रही है, तो उसके अंदर सबने आपने आंसर करने हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी हमारे पास 70 थे तो 36 आंसर है सिर्फ। सो टाइम लिमिट को देखते हुए आपने क्वेश्चंस को आंसर करना है। ये जस्ट एक सैंपल क्वेश्चन था आपको बताने के लिए कि कैसा क्वेश्चन होगा। तो अगले क्वेश्चन से जो है आपकी वो मार्किंग होगी। ठीक है, फिर स्टार्ट करें फिर? यस चले, क्विज। Which of these societies have collaborated with us for this session? एक जनरल क्वेश्चन है। It's first IEEE UET, IEEE UCP, next is IEEE UCP, IEEE CNAID, or third is IEEE GCU, IEEE UCP, and fourth is IEEE CNAID and IEEE UET. So 2 seconds more, and okay. So 17 right answers and
16 wrong answer. Oh, nice. 20 wrong answer. So देखते हैं स्कोरबोर्ड अब चेक करते हैं. और स्कोरबोर्ड के अंदर मरियम फर्स्ट पे है, मुंशी सेकंड, माहा थर्ड, लाइबा फोर्थ एंड मुस्कान. तो यहाँ पे जो है वुमन इन टेक जो है वो लीड कर रही है. सो ये स्कोरबोर्ड आपको शो हो रहा है सबको? यस. ठीक है. सो वी हैव स्कोरबोर्ड हियर. अभी स्कोरबोर्ड ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो क्वेश्चन जो है जो क्विकली आंसर करेगा टाइम के अंदर उसका क्विकली आंसर करने में भी जो है आपको रिकॉर्ड चेंजेस विच ऑफ द कमांड रिकॉर्ड चेंजेस टू द रिपोजिटरी. इसमें से कौन सी कमांड है जो कि रिकॉर्ड करती है चेंजेस को रिपोजिटरी में? फर्स्ट इज गिट क्लीन, सेकंड इज गिट क्लोन, थर्ड इज गिट कमिट एंड फोर्थ इज गिट डिस्क्राइब. सो 5 seconds remaining. Okay, 66 आंसर्स. लेट्स सी क्या रिजल्ट. ओके, तो काफ़ी आप लोगों को लगता है सेशन अटेंटिव होकर सुना था, तो 54 ने राइट आंसर दिया. तो देखते हैं. ओहो. सो मुंशी को मैं देखा कि थर्ड पे आ गए, मरियम स्टिल ऑन फर्स्ट, लाइबा ऑन सेकंड, मुस्कान इज ऑन फोर्थ एंड अब्दुल राफे इज ऑन फिफ्थ. सो स्कोर बोर्ड थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन मरियम इज ऑन द लीड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. स्पीकर ऑफ टुडेज सेशन. कौन थे आज के स्पीकर? साद असलम, सेकंड कामरान अकमल. आज का स्पीकर यहाँ ऑडियोनिक स्पीकर हमने मंगवाए हुए थे, यहाँ फोर्थ अली अयूब. तो ठीक है साद असलम, मैं स्पीकर नहीं था आज का, मैं आज का होस्ट था. सो सॉरी जिन्होंने मुझे सिलेक्ट किया. और ये मुझे बताएं कामरान अकमल को किसने सिलेक्ट किया? यार ऑडियोनिक को किसी ने नहीं सिलेक्ट किया. नहीं भाई, ऑडियोनिक कोई नहीं. सो मरियम फर्स्ट पे, लाइबा सेकंड, मुंशी अभी तक थर्ड पे है. तो मैं चाह रहा हूँ कि मुंशी और टॉप पे आए. और फोर्थ इज अब्दुल राफी एंड फिफ्थ इज अरूज. सो स्कोर बोर्ड थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो अभी भी चेंजिंग हो सकती है. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन. switch which of the command switch branches or restore working tree files. ये थोड़ा सा complicated है. First is git checkout, second is git branch, third is git fetch and fourth is git bundle. Second remaining. Hurry up. अच्छा, वो ऑप्शंस नहीं शो हो रहे. Options show नहीं हुए आपको? नहीं, मुझे शो नहीं हुए. मुझे शो नहीं हुए. काइंडली मुझे बताएं कि आपको ऑप्शंस शो हो रहे हैं बाकियों को? नहीं, मुझे भी नहीं हो रही. नहीं हुए, लेट हुए बहुत. नहीं सर, शो हो रहे हैं. लास्ट सेकंड में. चलो वो ना असल में कुछ कनेक्शन, अगर कोई किसी का नेट का अगर थोड़ा सा कनेक्शन का इशू होना, तो इस वजह से वो नेट कर जाता है. चले कोई नहीं. सो फर्स्ट आप देखते हैं कि 30 ने सही आंसर दिया है, तो मुझे लग रहा है स्कोर बोर्ड अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा. तो देखते हैं स्कोर बोर्ड क्या है. ओहो. सो लाइबा इज ऑन फर्स्ट एंड समीर इज ऑन सेकंड एंड मरियम इज ऑन थर्ड, सिद्रा इज ऑन फोर्थ एंड मुंशी फिफ्थ पे. सो व्हाई मुंशी? Okay, so next question. True or false? Git add clone a repository to a new directory. Is it true or false? Hurry up. 10 seconds. half. So git add नहीं, ये git clone जो है वो क्लोन करता है आपकी रिपोजिटरी को. ठीक है. So git add जो इस पे यूज नहीं होगा. So देखते हैं स्कोरबोर्ड क्या है. ओहो. So लाइबा आप स्कोरबोर्ड से रिमूव हो गई. यही तो सारा गेम का काम है. और समीर इज ऑन फर्स्ट, सिद्रा इज ऑन सेकंड, लाइबा इज ऑन थर्ड, अब्दुल रावे इज ऑन फोर्थ एंड अलीजा इज आवर न्यू कंपेटिटर इन द स्कोरबोर्ड. और अब जो है मुंशी गायब हो गए यहाँ से. सो नाउ मूव. अच्छा, यहाँ तक सबको स्कोरबोर्ड विजिबल है? ओके सब कुछ? यस. ओके. सो बस अब कुछ 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, तो अब स्कोरबोर्ड का उसके ऊपर सारा आपका डिस्कशन देखी जाएगी. तो बी अटेंटिव फॉर. ओके, क्विज. हैशटैग यू विल यूज फॉर द पोस्ट इवेंट फीडबैक. मींस अब इस इवेंट के बाद आप कौन से हैशटैग यूज करेंगे?
इस पोस्टर के साथ, ठीक है। तो आप ये समझ ही नहीं आ रहे। ओके, सो पोस्ट इवेंट फीडबैक क्या है कि अभी जो है मैं आपके साथ एक स्लाइड शेयर करूंगा, तो आप लोगों ने उस जो स्लाइड है उसका एक स्क्रीनशॉट लेना है अपनी लैपटॉप स्क्रीन से, और आपने अपने सोशल मीडियाज के ऊपर जो है उसको शेयर करना है। लाइक आपने आज फर्स्ट सेशन के अंदर क्या सीखा, ठीक है, जो भी आप लोगों ने चीज़ें सीखी, क्या अच्छा लगा, क्या चीज़ें सीखी, तो आपने वो सारी चीज़ें जो हैं उस एक फीडबैक होगा आपका, जिसको हम देख के हमें अपने नेक्स्ट सेशन के ऊपर उसको इम्प्रोवाइज करेंगे। तो आप लोगों ने ये चीज़ मस्ट कर दी है, ठीक है। तो ओके, आप लोगों की तरफ से ये चीज़ करनी है आपने बस, ठीक है। करने मुझे कोई बता दें कि यहाँ तक सब विजिबल है आपको? Yes. ऑलराइट, ओके, सो स्कोरबोर्ड देखते हैं। सो स्कोरबोर्ड बिल्कुल चेंज हो गया, समीर फर्स्ट पे है और मुझे लग रहा है कोई काम खराब कर देंगे ये। सो सेकंड पे बुशरा एंड मैरिलिन इज अ न्यू कंपेटिटर, एंड अरूज इज ऑन फोर्थ एंड फिफ्थ इज ऑन सिद्रा। सो बॉयज किधर है मुझे ये बताओ, ठीक है। सिर्फ ओनली वन समीर। तो ओके, सो 8th क्वेश्चन, क्रिएट एन एम्प्टी गिट रिपोजिटरी। कौन सी कमांड है जो कि एक एम्प्टी गिट रिपोजिटरी क्रिएट करती है? इट्स git gc, second is git ui, third is git clone and fourth is git init। कौन सी कमांड एक एम्प्टी गिट क्रिएट रिपोजिटरी क्रिएट करती है? 3 seconds remaining, hurry up। So 56 राइट आंसर। तो स्कोरबोर्ड देखते हैं। तो स्कोरबोर्ड सेम है, कुछ चेंज नहीं हुआ। तो मुझे लग रहा है कि लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइक उसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उस क्वेश्चन को आपने ध्यान से करना है, लास्ट क्वेश्चन। सो आर यू रेडी फॉर द वेरी लास्ट क्वेश्चन? Yeah. Yes. सो एक जनरल क्वेश्चन है, व्हाट स्पेशल ऑन नवंबर 1st? कुछ भी एक आपका कॉमन सेंस। इस गिट हो गया सेकंड सेशन, we are going to announce, second is feature attendees announcement, third is my birthday, and fourth is first day of November। क्या चीज है फर्स्ट नवंबर? It's going very generic। Let's see। Okay, so सिर्फ 4 लोगों ने सही आंसर किया है। उस दिन मेरी बर्थडे, ठीक है। तो ये जस्ट आपका स्कोरबोर्ड चेंज करने के लिए था। तो हमारा जो सेकंड सेशन है ना, वो 1 नवंबर को नहीं, वो 31 अक्टूबर को होगा, ठीक है। तो मोस्टली ने यही सेशन आप लोगों ने क्लिक करना था जस्ट स्कोरबोर्ड चेंज करने के लिए आपका। तो 33 इज द रॉन्ग चल रहा है, फिर तो शीट बनती है ना। हाँ, तो सोचो ना फिर कुछ, ठीक है। आपने देनी है। अच्छा चलो ठीक है, ट्रीट कर लेते। सो रिमेंबर दैट 1 नवंबर 1st को बर्थडे। सो लास्ट यार विनर। सो थर्ड पे देखते कौन है। ओके, मैरिलिन इज ऑन थर्ड, बुशरा इज ऑन सेकंड, एंड फर्स्ट इज समीर तो नहीं। तो दीज आर द 3 विनर्स। और हमारे जो रनर अप हैं, तो ओके, तो आप लोगों तो गेम पसंद आई आपको? बहुत पसंद आई, बहुत। अच्छा, तो इसका एक जितने भी आप लोग जो विनर्स हैं, लाइक अभी क्योंकि इसके ऊपर हमें आपकी कंप्लीट डिटेल्स का नहीं पता, तो अगर आप कम्युनिटी में मेंबर्स हैं ग्रुप के अंदर, तो आप ग्रुप के अंदर से मुझे रीच आउट कर लें। और अगर कोई आउटसाइडर्स हैं जो कि कम्युनिटी में नहीं है, तो आपको ईमेल आई होगी, तो उसके थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर लें कि आपको मैं कम्युनिटी में ऐड कर दूं। और एक आपको लाइक फीचर अटेंडी की जो है एक पोस्ट होगी, जो कि हमारे ऑफिशियल पेज के ऊपर उसको पब्लिश करेंगे। तो उसके लिए आप तीनों जो विनर्स हैं वो मुझे कांटेक्ट कर लें, और उसके बाद आपकी एक फीचर अटेंडी की पोस्ट हम शेयर कर देंगे। सो जस्ट रैपिंग अप द सेशन। सो 1 मिनट में इसके स्क्रीनशॉट ले लूँगी मुझे। Excuse me. Yes. What is about this feature attendee? Can you repeat it again? Like
जस्ट वेट अ मिनट। लाइक हर सेशन के अंदर जो है हम कोई अटेंडीज लाइक जिन्होंने अच्छी पार्टिसिपेशन दिखाई दी तो उनको हम एक रिकॉग्निशन देते हैं पेज के ऊपर, लाइक उनकी एक पोस्ट बन के हम शेयर करते हैं। तो जो भी अगर आप विनर हो या कोई भी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर लो। सो होप सो मैंने आप लोगों को ईमेल भेजी होगी, आपको रिसीव हुई होगी। अगर आप कम्युनिटी से आउटसाइडर्स हैं तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर लें तो आपको मैं ऐड कर दूंगा और आपकी पोस्ट जो है उसको शेयर कर देंगे। सो जी मैंने अभी चेक किया, मुझे मेल नहीं आई है। Where shall we contact you? अच्छा, आपको मेल नहीं आई? नहीं। अच्छा जस्ट वेट, मैं आपको ना लास्ट पे नहीं मैं आपको लास्ट पे भी अपनी ईमेल शेयर कर देता हूँ। सो जल्दी से जो है आप लोगों को ये एजेंडा आज का था जो कि हमने डिस्कस किया। सो अपनी जल्दी से एक एंडिंग अटेंडेंस मार्क कर दें। ये वही फॉर्म है जो कि आपने स्टार्ट में अपनी स्टार्टिंग अटेंडेंस के लिए मार्क किया था, तो उसके ऊपर दोबारा से एक फॉर्म फिल करके अपनी एंडिंग अटेंडेंस भी मार्क कर दें। सो जल्दी से आपके पास 2 मिनट है, आप इसको मार्क कर दें। यू ऑल हैव दिस फॉर्म। Where is this link by the way? मतलब अच्छा आपने शेयर नहीं किया, लाइक आप जैसे इसको ब्राउजर के पे जाके सर्च कर लो तो आपको जो है ये ओपन हो जाएगा, क्योंकि इसमें अटेंडेंस की जो है ऑप्शन और सॉरी मैसेज की ऑप्शन नहीं है। सो ये जल्दी से आप मार्किंग अटेंडेंस कर लें। उसके बाद आपको जैसे बताया है कि ये 3 हैशटैग्स हैं, इसके आप स्क्रीनशॉट ले लें कुछ भी, आप इसको आफ्टर द इवेंट जो है एक फीडबैक शेयर करेंगे अपने सोशल मीडियाज़ के ऊपर। तो ये जो है लाइक एवरीवन आई रिक्वेस्ट यू कि आप सब जो है एक स्क्रीनशॉट ले लें इस अभी स्लाइड का, लाइक ये जो आपको पोस्टर। यस आई विल शेयर द लिंक अगेन। सो द लिंक इज bit.ly/gitgit हो गया 01। एक्सक्यूज मी सर, जी हमें स्क्रीनशॉट जरूरी कि हमें ईमेल में आई है तस्वीर? जी आई है आपको? जी आई है। अच्छा तो आप यहाँ से आप एक स्क्रीनशॉट ले लें इस स्लाइड का, इस पोस्टर का। तो इसके बाद आप जो है अपने सोशल मीडियाज़ के ऊपर इन हैशटैग के साथ जो भी आज आपको सेशन के मतलब सीखा या कुछ आप क्या चीज़ आज सीखी, तो आप काइंडली अपना पोस्ट इवेंट फीडबैक ज़रूर हमें दीजिएगा ताकि हम अगले सेशंस के अंदर इस चीज़ को देख सकें। सो दैट्स हैशटैग इज MLSA Lahore, IEEE UCP student branch and its IEEE Kinect. These are the 3 hashtags. So साथ भाई लिंक आप व्हाट्सएप में सेंड कर सकते हैं? व्हाट्सएप जी मैं व्हाट्सएप पे भी सेंड कर, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने शेयर किया हुआ है। सो अगर कोई आउटसाइडर है इधर जो कि ग्रुप्स में नहीं है तो वो भी रीच कर ले तो उनको हम ग्रुप्स में ऐड कर देंगे। सो लाइक कल एक हमारा एक और सेशन है इसी टाइम 3 बजे, लाइक इट्स गोइंग टू बी ऑन साइबर। सो एक सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम है जो कि मैं डिलीवर करूँगा। एक जस्ट आपको एक जल्दी से एक इंट्रो दे दूं कि आपकी डेली टास्क के अंदर सिक्योरिटी क्यों इंपॉर्टेंस रखती है और आप उसको किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो कुछ हम बेसिक सिनेरियोस डिस्कस करेंगे कल। सो कल एग्जैक्ट 3 बजे इसी टाइम जो है एक सेशन है, आपको ईमेल जो है हम फॉरवर्ड कर देंगे। अगर आपको कोई ईमेल नहीं मिलती तो काइंडली आप ज़रूर मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा ताकि आपको ईमेल फॉरवर्ड कर दे। अगर आप लोगों ने लाइक कांटेक्ट करें तो जस्ट फाइंड मी ऑन लिंक्डइन और जस्ट आप ब्राउज़र पे मुझे सर्च कर लें साद असलम, तो आपको मैं एक मेरी पोर्टफोलियो आपको शो हो जाएगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग अ वंडरफुल ऑडियंस एंड दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। इस गिटहब का नेक्स्ट जो हमारा सेशन है वो नेक्स्ट सैटरडे को होगा और एक टुमारो जो है हमारा एक साइबर सिक्योरिटी के ऊपर सेशन है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे। Thank you so much for the amazing session. So Allah Hafiz. So thank you everyone. So that's it for today's session and Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.